اسلام آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات، مسئلہ کشمیر سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر اور LOC پر بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے یورپی سفیر کو آگاہ کیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ بلوچستان میں آئے روز سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادت کو صرف تحریب کاری کے طور پر نہ لیا جائے۔ تسلسل سے ہونے والے ان واقعات کے پس پردہ محرکات کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا۔ وادی نیلم میں اومیکرون وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث DHO کی سفارشات پر ضلعی انتظامیہ نے متعدد تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے۔ انتظامیہ کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت۔ مظفر آباد میں موجود لوہار گلی سلائیڈ کا مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے۔ وفاقی حکومت نے سلائیڈ کے متبادل لوہار گلی ٹنل منصوبے کے لیے فنڈز مختص کر دیے ہیں۔ برفباری سے بند یونین کوسٹل بھیڑی کی سڑک نہ کھولی جا سکی۔ 14 دیہاتوں پر مشتمل 15,000 سے زائد آبادی کو مشکلات کا سامنا۔ بھیڑی کی عوام کا حکومت کے خلاف پرامن احتجاج۔ آزاد کشمیر سیاحوں کے لیے پسندیدہ سیاحتی مقام بن گیا۔ ملک بھر سے سیاحوں نے پیر چناسی اور وادی نیلم کا رخ کر لیا۔ سرد موسم میں بھی سیاحوں کی خوب موج مستیاں۔ سرگن ویلی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ہمیں الگ یونین کونسل کا درجہ دیا جائے۔ شاردا اور کیل کے ساتھ ملا کر پسماندہ رکھنے کی مذموم سازش کی جا رہی ہے۔ سرگن ویلی کے عمائدین کی پریس کانفرنس۔ حکومت ہمیں دیگر 403 محلمین القرآن کی طرز پر بحال کرے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے۔ اگر حکومت نے ہمارا مطالبہ نہ مانا تو ہم اپنے حق کے لیے سڑکوں پر ہوں گے اور کفن پوش احتجاج کریں گے۔ متاثرہ محلمین القرآن کی حکومت کو دھمکی۔ مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں نے تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دارالحکومت مظفر آباد آزاد کشمیر کے لیے گولڈ میڈل حاصل کر لیے۔ گولڈ میڈل حاصل کرنے والے بھائیوں کو عوام کا خراج تحسین۔ آزاد کشمیر میں سخت سردی کے باوجود بہار کی آمد کے استقبال کی تیاریوں کا بھی آغاز ہو گیا۔ دارالحکومت مظفر آباد میں جگہ جگہ پھلدار پودوں اور پھولوں کے سٹال سج گئے، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد دن بھر خریداری میں مصروف رہی۔ السلام علیکم، دو میل نیوز کے ساتھ میں ہوں لارے بھان اور میں ہوں مائرہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھیں دو میل نیوز یوٹیوب چینل۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات، مسئلہ کشمیر سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر اور LOC پر بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے یورپی سفیر کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات، مسئلہ کشمیر سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر میں تعلیم، صحت، انسانی وسائل کی ترقی کے لیے یورپی یونین کے تعاون سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین کے سفیر کو مقبوضہ کشمیر اور LOC پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر اور LOC پر انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی پابندیاں ہیں۔
भारत ने मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी की इंतहा कर दी है। भारत की रियासती दहशत गर्दी से बच्चे महफूज तक नहीं, ना ही बुजुर्ग और ना ही खवातीन हैं। आलमी बरादरी भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए दबाव डाले। आजाद कश्मीर में मीडिया और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को रसाई है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में कोई रसाई नहीं। यूरोपीय यूनियन ने कश्मीर में इंसानी हकूक़ के हवाले से काबिल कदर किरदार अदा किया है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदरान ने कहा कि बलूचिस्तान में आए रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत को सिर्फ तहरीब कारी के तौर पर ना लिया जाए। तसलसल से होने वाले इन वाक़यात के पसे पर्दा मुहरकात का बारीक बीनी से जायजा लेना होगा। बदकिस्मती से यहाँ वज़ीर आज़म और वज़रा को मुल्क और कौम की कोई फिक्र नहीं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर साबिक सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू व कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदरान ने कहा है, बलूचिस्तान के ज़िला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदरान ने कहा है कि इस सानहे में पाक फौज के 10 जवानों की शहादत एक गैर मामूली संगीन वाक़या है। इसे आम तहरीबकारी के वाक़े के तौर पर ना लिया जाए। कुछ अरसे से तसलसल के साथ होने वाले ऐसे वाक़यात गैर मामूली हैं और इनके पस पर्दा मुहरकात का बारीक बीनी से जायजा लेना होगा। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती और एक अलमिया है कि यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़रा को मुल्क और कौम की कोई फिक्र नहीं है। वो हमा वक्त अपोजिशन को फतह करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि जब मस्खरे लोग वज़ीर दाखिला होंगे तो इस तरह के वाक़यात का कौन नोटिस लेगा। राजा फारूक हैदरान ने कहा कि वतन अजीज़ के हालात पर हर पाकिस्तानी और कश्मीरी का दिल दुखी है, मगर यहाँ अरबाब अख्तियार को अपनी ज़ात और अपने इक़्तिदार के अलावा किसी की फिक्र नहीं। मुल्क का जो मर्जी हो। वादी नीलम में ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस DHO की सिफारिशात पर जिली इंतजामिया ने मुतअद्दिद तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए। इंतजामिया की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत। नीलम में ओमिक्रॉन वायरस के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, जबकि महकमा सेहत आमा की जानिब से रेंडम सैम्पलिंग का सिलसिला भी जारी है। नीलम में मुस्बत केसेस के बायस मुतअद्दिद तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नीलम डॉक्टर अब्दुल मतीन का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और समाजी फासला बरकरार रखें ताकि ओमिक्रॉन वायरस जैसे मूजी मर्ज से बचा जा सके। आज की कल की जो हमारी रिपोर्ट है उसमें जो हमने रैपिड टेस्टिंग भी की है, PCR टेस्टिंग भी की है, स्कूल से भी की है और जनरल कम्युनिटी से भी की है, तो कल की हमारी 7% है पॉजिटिविटी रेट ओवरऑल। और उसमें से जो है वो 3 स्कूल जो है वहाँ भी स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिव आए हैं। एक कटाची वैली है और 2 अठमकाम के स्कूल्स हैं। तो एहतियाती तौर पे हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया है कि इन स्कूल को एक हफ्ते के लिए क्लोज किया जाए ताकि बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अछूती बीमारी है बाकी सारी किस्मों की निस्बत। तो इसलिए इसमें जो है वो बच्चों में फिर चूंकि गैदरिंग होती है स्कूल के अंदर जो है ना, वो बहुत ज्यादा फिर फैलने का खतरा होता है। तो इसलिए एहतियातन जो है वो एक हफ्ते के लिए स्कूल हमने क्लोज की है। मुजफ्फराबाद में मौजूद लोहार गली स्लाइड का मसला हल होने के करीब है। वफाकी हुकूमत ने स्लाइड के मुतबादिल लोहार गली टनल मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। मंसूबा आज़ाद कश्मीर की सियाहत के लिए अहम संगे मील साबित होगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लोहार गली स्लाइड को आज़ाद कश्मीर की खूनी स्लाइड भी कहा जाता है, जो न सिर्फ 20 से ज्यादा इंसानी जानों को निगल चुकी है, बल्कि स्लाइड से मुल्का बड़ी आबादी भी नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। 50 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। ये स्लाइड पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर के साथ बिना किसी पुल के मिलाने वाली वाहिद कदीम शाहराह पर मौजूद है, जहाँ से रोजाना हजारों मुसाफिर गुजरते हैं। करे हमारी दुआ है कि ये काम शुरू हो जाए, लेकिन इससे पहले भी कई हुकूमतें आई, कई गई, हमने यही सुनते रहे हैं। अभी भी हमने जो ये सुना है सोशल मीडिया के ज़रिए सुना है कि भाई ये काम जो है शुरू होने वाला है, इतने पैसे इसके लिए मख्तस हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक हमने यकीन उस दिन होगा जिस दिन ये काम हमारी आंखों के सामने हो जाएगा, तब यकीन होगा कि ये काम हो गया है। 25 साल से ही सुनते आ रहे हैं, शुरू होगा। अल्लाह करे ख्वाजा कैदर साहब ये काम स्टार्ट कर दे तो ये हमारे लिए इंशाल्लाह। वज़ीर बल्दियात आज़ाद कश्मीर ख्वाजा फारूक अहमद ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में हल्का 3 की आवाम से लोहार गली टनल के देरीना मसले का हल का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। बर्बाद डिवीजन बर्बाद शहर के अवाम की तरफ से इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए जो फंड हैं अपनी तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद फ्राहम किए हैं। 45 अरब का ये मनसूबा है, जिसमें से 25 अरब रुपया जो है वो इस मनसूबे के लिए मुख्तस जो है वो किया जा चुका है, फ्राहम भी हो चुका है। इससे मैं समझता हूँ कि 1.5 किलोमीटर की जो लोहार गली टनल है और जो 25
किलोमीटर की जो बाईपास रोड है वो तमाम ऐसे इलाकों से गुजरेगी जो टूरिज़म के वाले से भी जो है वो अहमियत रखते हैं। टूरिज़म काफ़ी अरसे से आज़ाद कश्मीर में फल फूल रहा है, तो लेकिन लोअर गली की वजह से जो है वो बड़ी दिक्कत आती थी कि जाने भी यहाँ पे जाए। बर्फबारी से बंद यूनियन कौंसिल भेड़ी की सड़क न खोली जा सकी। 14 देहातों पर मुश्तमिल 15,000 से जायद आबादी को मुश्किलात का सामना। भेड़ी की आवाम का हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। मजीद तफसीलात वहीद शेख की रिपोर्ट में। एक माह गुजरने के बावजूद यूनियन कौंसिल भेड़ी का रास्ता बहाल न हो सका। 14 देहातों पर मुश्तमिल 15,000 से ज्यादा आबादी वाले यूनियन कौंसिल के लोग किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। आए रोज मरीजों और लाशों को अपने कंधों पर उठा कर ले जाते हैं। अब लोग एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। अवाम इलाका की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। अवाम का कहना था कि कहूटा से ख्वाजा बांडी सड़क की बहाली, मेडिकल ऑफिसर, डिस्पेंसरी और अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर सड़क को बहाल न किया गया तो हमारे सारे मुतालबात न माने गए तो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। कोई भी नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर होगी। शेख वहीद इकबाल, हवेली, कहूटा, दुमेल न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर सयाहों के लिए पसंदीदा सियाहती मुकाम बन गया। मुल्क भर से सयाहों ने पीर चिनासी और वादी नीलम का रुख कर लिया। सर्द मौसम में भी सयाहों की खूब मौज मस्तियाँ। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर सयाहों के लिए सबसे पसंदीदा सियाहती मकाम बन गया। मुल्क भर से सयाहों ने पीर चिनासी और वादी नीलम का रुख कर लिया। सर्द मौसम में भी खूब मौज मस्तियाँ की। तो पहले भी आता रहता हूँ, मगर आज आया हूँ तो बहुत खूबसूरत लगा है। ये जो मंजर देख रहा हूँ, जो जगह गेस्ट हाउस हैं वो भी बड़े माशाल्लाह मुनासिब रेट्स पे हैं। हमारे जो इस सियाहत के जो टूरिज़म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है अब्दुल रज़ाक मुग़ल साहब, उनके शारदा में नेटवर्क है, अड़ंकेल में नेटवर्क है, मुजफ्फराबाद के अंदर बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। तो आप तशरीफ़ लाएँ, मोस्ट वेलकम हम आपको कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ की सौगात जो लोकल है, कुलचे हैं, बकरखानियाँ हैं। चेयरमैन प्राइवेट टूरिज्म एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान से जो भी सयाह आते हैं इनकी रिहाइश में 50% डिस्काउंट है। आपको जाएंगे, आपको मौसम बहार मिलेगा और उसके अंदर कश्मीर, क्या बात है। कश्मीर के बारे में जो कहते हैं कि घर जन्नत ज़मीं आस कश्मीर आस कश्मीर आस, तो कश्मीर की अपनी मेहमान नवाजी, कश्मीर की सकाफ़त और कश्मीर की जो इंतहाई जो कम रेट पे, मैं इससे पहले भी मेरा कहने का इसका बिल्कुल बरमला ये मकसद नहीं है कि किसी को कोई जो है ना मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन मैं चूँकि हमारी अपनी एक सकाफ़त है तो हम इसको इंतहाई ऑफ रेट पे, कम रेट पे और दुनिया की एक अच्छी सियाहत जो इंटरनेशनल लेवल की सियाहत जो टूरिस्ट को जो दरकार है वो हम अवेल कर सकते हैं। अब भी आज़ाद कश्मीर में बहुत से सियाहती मकाम सयाहों की नजरों से ओझल हैं और तवज्जो के मुंतजिर हैं। सुरगन वैली के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, हमें अलग यूनियन कौंसिल का दर्जा दिया जाए। शारदा और केल के साथ मिलाकर पसमानदा रखने की मज़मूम साजिश की जा रही है। सुरगन वैली के अमायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसके में जो हल्का बंदियाँ, जिस वक्त भी कोई इलेक्शन आता है हल्का बंदियाँ होती हैं, वो हल्का बंदियाँ हुई तो हमारी नज़र में वो गैर मुनसफाना थी। इस ज़मीन में पहले भी हम, ये आज की बात नहीं है, जिस वक्त इज़्ज़त माब जनाब प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त भी हमने ये आवाज़ उठाई थी कि सुरगन को अलहदा यूनियन कौंसिल का दर्जा दिया जाए। और उसके अलावा जिस वक्त साबिक़ स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादर साहब कराची के विजिट पर गए थे तो वहाँ तहरीक शिफाफ नीलम के चेयरमैन बिशारत खान सलाती से मिले थे। वहाँ भी अपने एजेंडा जो उनके सामने पेश किया था, चार्टर ऑफ डिमांड, तो हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि सुरगन को अलहदा यूनियन कौंसिल का दर्जा दिया जाए। किस लिए दिया जाए कि आबादी के तनासब को देखते हुए और रकबे को तनासब को देखते हुए शारदा यूनियन कौंसिल बहुत बड़ी है, जिससे लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा। जैसे ये रकबा और आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस दिन में जिस वक्त हमारी सुनवाई नहीं हुई तो तहरीक शिफाफ नीलम के चेयरमैन बिशारत खान सलाती साहब अदालत
पटिशन दायर करने, अदालत में रिट दायर कर दी उन्होंने कि हमें हमारा हक दिया जाए। हुकूमत हमें दीगर 403 मुहल्लीन अल कुरान की तर्ज पर बहाल करे। हम पुरअमन लोग हैं, एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। अगर हुकूमत ने हमारा मुतालबा ना माना तो हम अपने हक के लिए सड़कों पर होंगे और कफन पोश एहतजाज करेंगे। मुतासरा मुहल्लीन कुरान की हुकूमत को धमकी। मुअल्लिमीन अल कुरान ने नई पॉलिसी अपना ली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का खिताब सुनने के बाद मुतासरीन मुअल्लिमीन अल कुरान आज़ाद कश्मीर ने सड़कें जाम करने का फैसला कर लिया। हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हम इंतहाई पुरअमन लोग हैं और रियासती कानून की पासदारी कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हमें हमारा कानूनी हक दिया जाए। मंजूरी के बाद भी अभी तक वादा वफा नहीं हुआ। अगर हालात जो के तू रहे तो 7 फरवरी 2022 को सख्त कफन पोश एहतजाज किया जाएगा। सदर आज़ाद कश्मीर भी मुअल्लिमीन की बहाली में अपना अहम रोल अदा करें। हमें उम्मीद है कि हुकूमत जल्द इसका हल निकालेगी और रियासत और उलमा इकराम को बदनामी से बचाएगी। मुजफ्फराबाद से तल्लुक़ रखने वाले 2 भाइयों ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले भाइयों को अवाम का खिराज तहसीन। फाटा में मुनक्किदा नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मुजफ्फराबाद से तल्लुक़ रखने वाले 2 भाइयों ने वफाकी दारुल हुकूमत और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। एक भाई ने आज़ाद कश्मीर की टीम की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल जीत, जिसका नाम सकलेन है, जबकि दूसरे भाई जिनका नाम हुसैन है, जिन्होंने इस्लामाबाद की जानिब से टीम में शिरकत करते हुए गोल्ड मेडल जीता। ये जो चैंपियनशिप है इसमें पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, फाटा और इस्लामाबाद समेत आज़ाद कश्मीर की टीमें हिस्सा ले रही थी। ये जो ताइक्वांडो गेम है ये ओलंपिक्स में भी खेली जाती है। गोल्ड मेडल जीतने वाले दोनों भाई इसके अच्छे प्लेयर हैं। इस्लामाबाद की जानिब से टीम में हिस्सा लेने वाले हुसैन अंजुम पाकिस्तान की कौमी ताइक्वांडो टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं और इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए ब्राउन मेडल लिया हुआ है। ये आज़ाद कश्मीर की खुशकिस्मती है कि ऐसे टैलेंट नौजवानों में मौजूद हैं, मगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से खेलों पर कोई खास तवज्जो न देने की वजह से ये टैलेंट सामने नहीं आ सकता। जबकि आज़ाद कश्मीर की निस्बत गिलगित तो बल्तिस्तान में सालाना 50 करोड़ रुपए की सालाना ग्राउंड स्पोर्ट्स को दी जाती है, जबकि आज़ाद कश्मीर में सालाना स्पोर्ट्स बोर्ड को 80 से 85 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिनमें उन्हें यूथ, स्पोर्ट्स और सकाफत और कल्चर को देखना पड़ता है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इस शोबे पर हुसूसी तवज्जो देते हुए फराह दिली से फंड्स की फराहमी करनी चाहिए ताकि आज़ाद कश्मीर में जुमला खेलों को भरपूर अंदाज में फरोग देकर कौमी सतह पर मुतारफ कराया जा सके। जबकि आज़ाद कश्मीर के रवायती खेलों को भी बाहर रखने पर हुकूमत को खुले दिल से फंड मुख्तस करने चाहिए ताकि आज़ाद कश्मीर के वो रवायती खेल जो अब नापैद हो चुके हैं और रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं वो भी दोबारा से बहाल हो सकें और हुकूमत की तवज्जो से लोगों में ये रवायती खेल जिनमें गतका, तलवार और दीगर शामिल है इनमें दिलचस्पी पैदा हो सके। आज़ाद कश्मीर में सख्त सर्दी के बावजूद बहार की आमद के इस्तकबाल की तैयारियों का भी आगाज हो गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जगह जगह फलदार पौधों और फूलों के स्टॉल सज गए, जहां शहरियों की बड़ी तादाद दिन भर खरीदारी में मसरूफ रहे। आज़ाद कश्मीर में एक जानिब तो मौसम सर्द है, मगर दूसरी जानिब बहार ने भी दस्तक दे दी है। बहार के इस्तकबाल के लिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मौसमी फूलों और फलदार पौधों के स्टॉल सज गए। खरीदारों ने भी इन स्टॉल्स का रुख कर लिया। हर साल जो है ना ये मौसम बहार के मौके पर ये स्टॉल लगाते हैं और जगह का गवर्नमेंट हमारे साथ अगर तावन करती है तो हम बहुत ज़्यादा इसको आगे वसी भी कर सकते हैं, मगर कुछ जगह न होने की वजह से पहले तो हम बेंग रोड पे थे, उधर जगह भी खुली डुली थी, उधर उस पर हम हर तरह की यानी पौधे लाते थे। अभी ये छतों पे हमने रखे हुए हैं, कुछ इतना नहीं होता, रश ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों को दुश्वारी का मसला बन जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि किसी को दुश्वारी न हो और रियायत चीज़ों अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाइज शजरकारी के मौसम में लोगों को चीज़ मुहैया की जाए। और महंगाई के बावजूद लोग फूल और पौधे खरीद रहे हैं, जबकि कोई कीमतें सुनकर खाली हाथ ही वापस लौट रहे हैं। ये पौधे शौधे खरीद रहे वो आया से जी, तो देख रहे पौधे माशाल्लाह बहुत अच्छे ते मौसम बाहर आई जी है, हर पास फूल ही फूल कारगर का इंशाल्लाह लासा बच्चे भी खुश हो सकें इंशाल्लाह। हुकूमती सतह पर अगर मुनासिब दामों पर नर्सरियां भी लगाई जाए तो लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। अब्बास जरीन, दोमेल न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। दोमेल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।